Good afternoon, dear students. Today I am going to teach you the duel. The poem is written by an American humorist Eugene Field. The poem is very funny and interesting. The main intention of this poem is to increase the audience reading about the poem. So on. In this poem, duel means the fighting between two persons, animals, and things, so on. The main message of this poem is we should not feel bad for others. If you feel bad for others, it causes distractions yourselves. So on. If you want to success in your life, we should always help to each others. If you do not help to each others, it means that you cannot get success. You cannot achieve target in your life. In this poem, there are four characters. These are, suppose that the Gingham dog and the calico cat and the Chinese plate and the old Dutch clock, so on. In this poem, they are imaginary characters. Suppose that they are talking to each other. Both the Gingham dog and Calico cat, they are sitting side by side on the table. Suppose that they did not sleep properly at night. It was 12:30 time, so on. They did not get sleeping, and all these things. Who is observing? The the old Dutch clock and Chinese plate. When they saw their fighting, they also fear, they also confuse what will happen there. But on the other hand, finally both the Gingham dog and the calico cat flew away. They left the place. There are many people folk tales that they have took away by the robbers. But all things which has been told by the poet Chinese plate. The old Dutch clock. In this way, the poem is very funny. The main intention of the poem is how can the reader, how can the students increase their reading habit. So now I am going to explain words to words. The Gingham dog and the calico cat side by side on the table sat. जिंगम डॉग एंड कैलिको कैट एक बैठे हुए थे कहाँ पे साइड बाय साइड एक साथ बैठे हुए थे. डू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग? दे आर सेटिंग साइड बाय साइड. दे आर सेटिंग साइड बाय साइड. नाउ they are setting side by side. Side by side means close together and facing the same way. Setting means समायोजन करना भोजन के लिए. It means that they have decided to do something. They are bargaining something. Someone wants more and more. उनको लग रहा था वो कुछ खाने के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे और बार्गेनिंग कर रहे थे. वो सौदा मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए, मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए, ऐसे वो सोच रहे थे. इट वॉज 12:30. अभी 12:30 बजे थे रात के. एंड व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक ये क्या है? राइटोरिकल क्वेश्चन पूछा गया है. व्हाट डू यू थिंक आपको क्या लगता है? ये फिगर ऑफ स्पीच है, राइटोरिकल क्वेश्चन. जैसे आप किसी को क्या कर रहे हैं, रीडर्स को एक सोचने को मजबूर कर रहे हो. जैसे व्हाट डू यू थिंक, ये क्या राइटोरिकल क्वेश्चन है. फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं? फिगर ऑफ स्पीच जो लैंग्वेज में व्हेन कोई सपोज दैट व्हेन द वुमेन वियर्स ornament, how she looks very beautiful. In this way
in this way. If you use figure of speech in poem, the poetic language seems very attractive and beautiful and rhythmic. So in this way the poet uses different kinds of figure of speech in this poem. Okay, next line. Nor one nor the other had slept wink. Slept wink means did not sleep. दोनों में से कोई भी सोया हुआ नहीं था. नॉर मीन्स और न सोया. द ओल्ड डच क्लॉक एंड द चाइनीज प्लेट, जो ओल्ड डच क्लॉक थी और जो ऊपर टंगी हुई थी चिमनी के ऊपर, और यू कौन एंड चाइनीज प्लेट, वहाँ पे रखे देखो चाइनीज प्लेट. Appear to, appear and seem to know as sure as fate. As sure as means पक्का, extremely bad or serious. There was going to be a terrible spat. वहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा होने जा रहा था. Terrible spat. I was not there. I was not there means वहाँ पे पोएट उपस्थित नहीं थे. I simply state, मैं इसे सिर्फ स्टेट कर रहा बता रहा हूँ कि what was told to me by the Chinese plate. ये मुझे चाइनीज़ प्लेट ने बताया था. सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट राइमिंग स्कीम ऐसे यूज करते कि आपको ये समझ में आए. व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? राइमिंग स्कीम इस पोएम में है ये. फर्स्ट यदि आप राइमिंग स्कीम पढ़ते हैं तो ए बी पी सी सी ए ऐसी राइमिंग स्कीम है. द फर्स्ट स्टैंजा है एंड सेकंड स्टैंजा एंड सेवंथ लाइन राइम. ठीक है. द पोएम हैज़ 4 स्टैंजाज. ईच स्टैंजा हैज़ 9 लाइन. 9 लाइन इज काइंड ऑफ वियर्ड. मोस्ट ऑफ द टाइम पोएम्स हैव लाइन इन द ग्रुप ऑफ 4 और 2. फर्स्ट और सेकंड और सेवंथ लाइन है वो सेम उसमें राइमिंग स्कीम है. जैसे ए फर्स्ट सेकंड में और 7 में भी क्या है सेम है. देखो ए में क्या है कैट और 7 में टी. 7 में 1 2 3 4 5 6 7 पैट टी इज़ रिपीटेड कैट. ये क्या हो जाएगा ए. ठीक है. और सेकंड में भी क्या है सैट टी रिपीटेड टी हो गया सैट हो गया. इस तरह से राइमिंग स्कीम है. फिर बाकी की जो है वो सेम है. इसी तरह से हर कोई स्टैंजा में ऐसे राइमिंग स्कीम आई है. नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा. द जिंगम डॉग वेंट बाउ वाउ वाउ. द जिंगम डॉग वेंट बाउ वाउ and the calico cat replied meow meow. In the first now this line you will find that the voice is repeated. When the sound is repeated, when the voice is repeated, when making sign, suppose that this is also onomatopoeia figure of speech. Suppose that what is the figure of speech? If you want to attractive language, we also use figure of speech in poem. Bow wow. This also same way. These are the voices which has been made by the dog and the cat. Meow. So it is a onomatopoeia. स्वर अलंकार. स्वर अलंकार क्या होता है? जो कोई प्राणी हो, कोई मशीन हो, जिनकी आवाज़ जो निकलती है, जो साउंड जब यूज किए जाते हैं, हम उसको क्या कहते हैं onomatopoeia फिगर ऑफ स्पीच. इसका मेन उद्देश्य क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच यूज करने का कि पोएम जो है अच्छी लगे, इफेक्टिव लगे, अट्रैक्टिव लगे. ठीक है. द जिंगम डॉग वेंट बाउ वाउ वाउ एंड द कैलिको कैट रिप्लाइड मियाओ. द एयर वाज लिटर. कैलिको कैट ने भी शुरुआत कर दिया अभी झगड़ा करने के लिए. एक दूसरे को क्या किया उन्होंने आवाज़ देने लग गए. द एयर वाज लिटर. जो एयर थी, हवा थी, पूरी तरह से क्या हो गई थी, पूरी तरह से बिगड़ी हो गई थी. जैसे लिटर मीन्स अनटाइडी विथ रबिश. पूरी गंदी हो गई थी, ख़राब हो गई थी. पूरा जो एरिया है वस्तु इधर उधर पड़ गई थी. लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लेफ्ट लाइंग अबाउट. विथ बीट्स ऑफ जिंगम एंड कैलिको. विथ बीट्स थोड़ी ऑफ जिंगम और कैलिको. जिंगम एंड कैलिको. वाइल द ओल्ड डच क्लॉक इन द चिमनी प्लेस. जो ओल्ड डच क्लॉक थी कहाँ पे थी? चिमनी प्लेस. चिमनी प्लेस ऊपर की जो रहती है ना, धुआं निकलने का जो मार्ग रहता है, चूल्हा लैम्प वगैरह उसको कहते हैं लैम्प, ऊपर थी. देखो वहाँ पे फोटो में दिया है. ऑफ विथ इट्स हैंड्स. ऊपर उसके हाथ थे. बिफोर इट्स फेस. उसके फेस के सामने.
फॉर इट ऑलवेज ड्रेडेड, हमेशा उसे क्या डर लगता था, ड्रेडेड यानी डर लगना, डरना, फियर। और फैमिली रो, जो फैमिली रो में थी वो दिख रहा है, ये जो तीनों रो है ना। नाउ माइंड, मेरी तरफ, अभी मेरी तरफ ध्यान दो। आई एम ओनली टेलिंग यू, मैं आपको एक बता रहा हूँ। व्हाट द ओल्ड डच क्लॉक डिक्लेयर्स इज ट्रू। पोइट कहते हैं कि अभी मेरी तरफ ध्यान दो, जो अब मैं बता रहा हूँ कि जो ओल्ड डच क्लॉक ने मुझे बताया था, घोषित किया था, बताया था। नाउ फोर्थ स्टैंजा, द चाइनीज़ प्लेट लुक वेरी ब्लू। जो चाइनीज़ प्लेट है पूरी तरह से ब्लू दिख रही थी, पूरी तरह से ब्लू हो गई थी। ब्लू होना यानी नीली हो जाना यानी वो वेल। वेल का मतलब क्या होता है? वेल मीन्स ऊंची आवाज़ में रोना, टू क्राई विद ग्रेट सॉरो। ठीक है, ऊंची आवाज़ में रोने लग गई थी। अभी क्या होगा, क्या होगा, वो दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। तो एंड वेल, वेल मीन्स होता है एंड वेल, आक्रोश से जोर जोर से चिल्लाना, आवाज़ में रोना, वेल है। ओ डियर, ओ डियर, ओ डियर मीन्स हा, डियर प्रिय, व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। वो इज टेलिंग दिस, द चाइनीज प्लेट इज टेलिंग टू द ओल्ड डच क्लॉक। बट द जिंगम डॉग एंड द कैलिको कैट, जो जिंगम डॉग और कैलिको कैट थी, वैल्यूएट। वैल्यूएट का मतलब होता है लड़खड़ाना, लौटना। अभी लौटने लग गए हो, देखो दिख रहे कैसे लौटे, लेटे हुए हो, देखो लड़खड़ा रहे एक दूसरे पे स्थान पे। बट द जिंगम डॉग एंड द कैलिको कैट वैल्यूएट दिस वे एंड टम्बल दैट, टम्बल यानी वो नीचे गिर पड़े, टम्बल दैट यानी नीचे गिर गए हो। ठीक है, टम्बल दैट। एम्प्लॉइंग, एम्प्लॉइंग का मतलब होता है यूज करना। एवरी टूट, वो हर कोई दांत, अपना दांत वो यूज कर रहे थे, उनके जो नख थे एक दूसरे को मारने के लिए लड़खड़ा रहे थे आपस में। इन द फुले, सबसे बुरी तरीके से। ये कौन सा ये कौन सी डिग्री है, सॉरी सुपरलेटिव। इन द अवे फुलेस्ट बोलते हैं ना, अवे फुल, अवे फुलेस्ट, जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है उसी तरह। इन द अवे फुलेस्ट वे यू एवर सॉ, एवर सॉ, आपने कभी भी ऐसा देखा होगा। ठीक है, ज़्यादा डर होना। एवर मीन्स एट एनी टाइम, ऑलवेज, हमेशा ऐसा देखा होगा। एंड और हो, हाउ द जिंगम एंड कैलिको फ्लू, किस तरह से जिंगम डॉग और कैलिको जो कैट थी का वहाँ से उड़ान भरी, वहाँ से जल्दी से जा गई, जल्दी से चली गई वहाँ से। डोंट फैंसी, कल्पना मत करो। एग्जेगरेट, मैं आपको बड़ा बड़ा के बता रहा हूँ। एग्जेगरेट का मतलब होता है जो कोई बात बड़ा चढ़ा के बताना। आई गॉट माई न्यूज़, मुझे ये न्यूज़ मिली फ्रॉम द चाइनीज़ प्लेट, ये न्यूज़ मुझे चाइनीज़ प्लेट ने बताई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे सुबह होती है, सेकंड स्टैंजा में पोएट हमको क्या बताते हैं, किस तरह से दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और चाइनीज़ प्लेट कैसे कैसे वो डर गई थी और पूरी तरह से वो क्या हो गई थी, नीली हो गई थी। और ये जो जो कैलिको कैट है और जिंगम डॉग है, एक दूसरे पे क्या कर रहे थे, लड़खड़ा रहे थे। और वो एक दूसरे को मारने के लिए उनके दांत का, उनके नखों का यूज कर रहे थे। इस तरीके से बुरी तरीके से वो एक दूसरे को मार रहे थे। फिर वो जो पोएट बोलते कि मैं सिर्फ कल्पना, डोंट फैंसी, कल्पना मत करो, मैं आपको सिर्फ बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। ये न्यूज़ मेरे को कहाँ से मिली थी, किसने बताई थी, चाइनीज़ प्लेट ने बताई थी। दूसरे दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन, वेयर द टू हैड सैट, और जब वो दोनों बैठे हुए रहते, दे फाउंड नो ट्रेस, उनको कोई मार्क, ट्रेस मीन्स निशान, उनको उनका दोनों का कुछ निशान नहीं मिला, डॉग और कैट का। एंड सम फोक्स, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, फोक्स यानी जो बहुत सारे ऐसे कथा कहानियाँ बताई जाती है। थिंक दैट अनटू यानी अनटिल, अनटू मीन्स क्या होता है, अनटू मीन्स अनटिल, में, पर्यंत, परेत, दिस डे दैट बर्गल्स टोल दैट पेयर अवे, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बताया कि बताया गया लोगों ने कि उनको जो बर्गल से, जो रॉबर से, जो चोर है वो उसको चुरा के ले गए होंगे। बट द ट्रूथ अबाउट द कैट एंड पप, लेकिन जो सत्य था, जो सच्चाई थी वो क्या थी, जो कैट और पप जो बच्चा था डॉग का, इन दिस दे एट ईच अदर, ऐसे बताया जा रहा था कि एक दूसरे को खा लिया होगा। बोले नाउ व्हाट डू यू रियली थिंक, आप क्या सोचते हो,
What do you really think? It is also rhetorical question asking to the readers. The old Dutch clock, it told me so. ये मुझे किसने बताया? ओल्ड डच क्लॉक ने बताया. एंड दैट इज़ हाउ आई केम टू नो. एंड इस तरह से मुझे वो पता चला. ठीक है, इस तरह से पोएट समझ में आई. इस तरह से हमेशा वी शुड नॉट फाइट टू ईच अदर. वी शुड ऑलवेज एडजस्ट द थिंग्स. सो ऑन. In this way, there is also one figure of speech used in this poem, personifications, a clock and a plate as able to tell a story. In addition, the clock uses hands to cover its face. Hands to cover its face. ये वर्ड्स हमें बताता है कि क्लॉक ने अपने हाथ क्या किया है, हैंड फैला दिए, हैंड्स टू फेस. ठीक है, इस तरह से जो क्लॉक है हाथ फैला सकती है क्या? ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग विच हैज़ शोन एज अ लिविंग. जो चीज़ें जिसमें जान नहीं है वो जान दिखाई जाती है. और जो बोलते हैं तो हम उसे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं पोएम में? पर्सनिफिकेशन. जैसे द फैन इज़ टॉकिंग, फैन इज़ वॉकिंग. फैन कभी चल सकता है, फैन कभी बोल सकता है. इसलिए जो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग उनको लिविंग दिखाया जाता है. इसको हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं? पर्सनिफिकेशन. इस पोएम में 3 फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए. फर्स्ट इज, व्हाट इज द फर्स्ट? पर्सनिफिकेशंस, rhetorical questions, and second is, थर्ड इज onomatopoeia. क्यों यूज करते हैं फिगर ऑफ स्पीच? क्योंकि पोएम पूरी तरह से इफेक्टिव और रिदमिक लगनी चाहिए और उसकी लैंग्वेज बहुत ही अट्रैक्टिव लगनी चाहिए. इस कारण पोएम में पोएट फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं. Do you understand this poem? In this poem, what do you think? Now questions. Answer the following questions. What was the time when Gingham Dog and the Calico Cat were sitting side by side? क्या टाइम था जब जिंगम डॉग एंड कैलिको कैट सेटिंग यानी क्या कर रहे थे? समायोजन कर रहे थे भोजन उपकरण के लिए. मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए इसके लिए टेबल पे. तो क्या टाइम था? इट वॉज 12:30. 12:30 बजे थे रात के, नाइट. व्हाट डिड द ओल्ड डच क्लॉक एंड द चाइनीज प्लेट नो वॉज गोइंग टू हैपन? कैसे पता चला चाइनीज क्लॉक और ओल्ड डच क्लॉक एंड चाइनीज प्लेट को क्या होने वाला है? और क्या श्योर थे उनको? कैसे पता था उनको श्योर था? श्योर में निश्चित रूप से उनको पक्का पूरा पता था क्योंकि फाइट होने वाली थी. किनके बीच में? द कैलिको कैट एंड द डॉग के बीच में. ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा? How the question answer will come? Question answer will come next. What did the old Dutch clock and the Chinese plate know was going to happen? For sure, क्योंकि the old Dutch clock and the Chinese knew that there was going to be a petty quarrel. दोनों के बीच में झगड़ा होने वाला था. ठीक है, ओल्ड एंड चाइनीज़ प्लेट पता था कि दोनों के बीच में झगड़ा होने वाला था. किन के बीच में? कैलिको कैट एंड डॉग के बीच में, जिंगम डॉग के बीच में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस. थर्ड क्वेश्चंस. हाउ वाज द एयर लीटर फॉर एन आवर और सो? व्हाट वाज द ओल्ड डच क्लॉक डूइंग एट दैट टाइम? हवा पूरी तरीके से कैसे गंदी हो गई थी, खराब हो गई थी 1 घंटे के लिए. व्हाट वाज द ओल्ड डच क्लॉक डूइंग एट दैट टाइम? तब ओल्ड डच क्लॉक क्या कर रहा था? द एयर वाज लीटर द जिंगम डॉग एंड द कैलिको कैट स्टार्टेड क्वारल बाय शोइंग देयर टूथ एंड क्लॉ. द ओल्ड डच क्लॉक वाज इन द चाइनीज प्लेस. ओल्ड डच क्लॉक के दोनों के बीच में झगड़े की शुरुआत हो गई. इसलिए जो ओल्ड डच क्लॉक था कहाँ पे था? चाइनीज़ प्लेस पे था. शोइंग ऑन इट्स हैंड, क्या कर रहा था तब वो? विथ इट्स हैंड्स बिफोर इट्स फेस. ऊपर उसके हाथ थे
एंड उसके चेहरे के ऊपर उसके हाथ थे. नेक्स्ट क्वेश्चंस. Describe the fullest way the gingham dog and the calico cat fought with each other. What did the Chinese plate wear at that time? The Chinese plate looked very blue at that time. The gingham dog and the calico cat wallowed this way and tumbled that, employing every tooth and claw in the fullest way you ever saw. इस तरह से क्या किया दोनों ने, जिंगम डॉग और कैलिको कैट ने क्या किया, एक दूसरे को क्या किया, उन्होंने लड़खड़ा रहे थे और नीचे गिर पड़े. और वो क्या किया उन्होंने, अपने किसी ने अपने दांतों का यूज किया, किसी ने अपने नखों का यूज किया एक दूसरे को मारने के लिए. और वहाँ से सबसे बहुत बुरी थी, सबसे बहुत बुरी तरीके से उन्होंने एक दूसरे को, आपने कभी नहीं देखा होगा, हमेशा आप देखते कैसे बुरे तरीके से एक दूसरे को मारा जाता है, पीटा जाता है, एक दूसरे को कैसे उन्होंने दांत दिखाए, इस तरीके से उन्होंने एक दूसरे को फाइट की. नेक्स्ट क्वेश्चन. बी. स्टेट ट्रू और फॉल्स. स्टेट ट्रू और फॉल्स. द जिंगम डॉग एंड द कैलिको कैट और सेटिंग साइड बाय साइड ऑन कोजी बेड. कोजी यानी जो सोफा रहता है सोने का. द जिंगम डॉग एंड कैलिको कैट वेयर सेटिंग साइड बाय साइड, गलत है. वो एक दूसरे कहाँ पे बैठे थे, वो टेबल पे, ऑन टेबल पे नहीं बैठे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. The old Dutch clock and the Chinese plate knew nothing wrong. They knew everything. पता था ना उनको सब उनके बारे में. The old Dutch clock watched everything with its hands before its face. The old Dutch clock watched everything, वो देख रहा था, its hands before its face. सही है, वो देख रहा था ना everything. The Chinese plate looked very blue. Right, true. Next morning, both the gingham dog and the calico cat were playing with each other. False. They flew away. वो चले गए थे वहाँ से, वहाँ पे नहीं थे वो दूसरे दिन. Next questions. Put a tick on the correct options. There was going to be a terrible spat which was known by. वहाँ पे बहुत ही बड़ा झगड़ा होने वाला था, वहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला था. एक किससे पता था? ऑप्शन ए ओल्ड डच क्लॉक, ऑप्शन बी चाइनीज़ प्लेट, बोथ ए एंड बी, दोनों को सी आएगा. फॉर एन आवर और सो द एयर वाज, एयर कैसी थी, पूरी तरीके से अनटाइडी हो गई थी, ख़राब हो गई थी, सही आएगा सी. वाइल द जिंगम डॉग एंड द कैलिको कैट फाउट द ओल्ड डच क्लॉक वाज इन द, कहाँ पे था जब जिंगम डॉग और कैलिको कैट लड़ रहे थे, तो वो कहाँ पे था? इन द चिमनी प्लेस में था, बी आएगा. एवरी टूथ एंड क्लॉ वाज अवेफुली एम्प्लॉयड बाय, दोनों ने यूज किया था ना, कैलिको कैट और जिंगम डॉग ने यूज किया था अपने नख और दांतों को. अनटू अंटिल दिस डे द लोकल फोक्स थिंक दैट द एयर पेयर वाज स्टोलन बाय, किसने चोरा के ले गए थे उनको? दोनों जोड़े को कौन चोरी करके ले गया था? बर्गल्स, चोर, थीप. नाउ क्वेश्चन नंबर ग्रामर. रिलेटिव क्लॉज टेल्स अस, जो रिलेटिव क्लॉज है वो क्या बताता है? टेल्स अस विच पर्सन्स और थिंग्स और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन्स और थिंग द स्पीकर इज रिफरिंग टू. इट इज़ नॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउंस लाइक हु, कौन, किसने, विच, किसका, किसकी, व्हाट, वाट एवर, जो, whom, किसको, whose, किसका, किसकी. रिलेटिव एडवर्ब लाइक व्हेन एंड व्हेन, जब, वेयर, कहाँ. दे यूजली फॉलो द नाउन्स और प्रोनाउंस, हमेशा वो नाउन्स और प्रोनाउंस को फॉलो करते हैं. दे मॉडिफाई, और एक दूसरे को नाउन के प्रोनाउन के बारे में मॉडिफाई करते हैं. दे आर टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, हमेशा सबऑर्डिनेट रहते हैं. दैट गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन्स ऑन थिंग्स. द नाउन और प्रोनाउन किसी के बारे में बताते ज़्यादा डिटेल पर्सन, नाउन्स और प्रोनाउन के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन. टिक द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस. कुड यू टेल मी, आप मुझे बता सकते हो क्या? दैट्स दैट, दैट्स डैश, वाज दैट, हु वाज दैट, वो कौन था, वो उससे जोड़ रहा है, हु वाज दैट.
ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है इसमें? सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कुड यू टेल मी, प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। हु वाज दैट। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे हु। राजा डजेंट नो व्हेन दिस बुक वाज रिटन बाय, और बाय हुम आएगा, किसने लिखा ये बुक, पता नहीं था उसको। द टीचर नोज हु डिड द मिस्टेक, टीचर को पता नहीं था किसने मिस्टेक की, किसने मिस्चीफ गलत तरीके से बिहेव किया। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया मुझे पता नहीं था। हु लेफ्ट द लाइट ऑन ऑल नाइट, किसने लाइट को ऑन रखा था रात में। ओके, इस तरह से आपको बाकी का आप HW कर सकते हैं। ठीक है, बी बाय। ओके, सी यू।